Good morning, dear attendees. We hope you all are safe and in good health. In the previous webinar on Day Trading with Candlesticks Volume 2, our research team spoke about a few trading setups that would guide, identify, and maximize the most of the candlesticks pattern so that you can make the most profit in the bull and the bear markets. In this webinar, we are going to discuss the concept of PCR, that is put-call ratio. A put-call ratio is a popular tool specifically designed to help individual investors estimate the overall sentiment of the market. Let's learn the techniques of using PCR for Nifty trading and understand why you should pay attention to it. To make things a lot more interesting, we have created a few polls for our attendees this time. The attendees who answer all the questions in the polls correctly and follows us across our social channels will stand a chance to win a 500 rupees Amazon gift voucher. The winner of the polls will be announced on our Facebook channel on the 15th of July, Wednesday. Before I formally introduce the technical research team leads, I would like to mention a bit about our company, BP Wealth. We are a 70-year-old organization focusing on creating wealth for our investors through our advisory research, PMS, and stockbroking services. Even in times like these, our excellent research desk has generated decent returns for our investors. On the webinar today, we have Hansraj Modi, Head Technical and Derivatives at BP Wealth. He holds a CMT certification from New York and is a master's in finance with over 14 years of experience in the field of technical derivatives. He has been a part of our BP Wealth family since the past 8 years. Along with him is Akash Chauhan, derivative analyst at BP Wealth. Akash has done his MBA in finance from NMIMS and has over 5 years of experience in derivatives. I will request Hansraj to commence this webinar, please. Hansraj, over to you. Thank you, Anush. Good morning, everyone. I hope everyone is safe and healthy. So talking about this series, as we had discussed earlier, that in upcoming webinars, now we are going to discuss about a particular tool, जिससे कोई भी एक particular tool से हम market को कैसे analyze कर सकते हैं and ज़्यादा focus होगा उसके practical implementation पे rather than just discussing theory. So first of all, for people who are attending this for the first time, this series, Investor Profit series, and you want to brush up your basics which we discussed in the past webinars, जो past में देखना है, आप definitely you can go to our YouTube channel. You will find the previous webinars link there, and also you can get onto our social media channels to get yourself updated with the upcoming webinar series. Talking about this webinar, today's topic is analyzing or trading Nifty with the help of put-call ratio. So this particular webinar requires you to be a little updated with a basic knowledge of future and options. थोड़ा सा आपको उसका option contract क्या होता है, futures क्या होता है, इसका एक basic idea चाहिए. So हमने already हमारे पहले के webinars में we have discussed basics of derivatives. ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हमने कुछ डिस्कस करी थी और फीचर्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कैसे हम करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस. सो टुडेज टॉपिक एज इट इज पुट कॉल रेशियो और पॉपुलरली नोन एज पीसीआर. पुट कॉल रेशियो इज नथिंग एल्स बट काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट. हमने लास्ट टाइम आपने देखा होगा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे डिस्कशन किया था. ओपन इंटरेस्ट को ही हम और अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं. वन ऑफ दैट वे इज पुट कॉल रेशियो, एनालाइजिंग अ पुट कॉल रेशियो, जिससे हमें कुछ और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग जैसे मिल सकती हैं विच कैन हेल्प अस इन आवर ट्रेडिंग डिसीजंस. सो टू स्टार्ट विद द फ्लो ऑफ द वेबिनार, today's topics are Akash. Yeah. So first we are going to discuss about open interest analysis. Open interest analysis options के लिए हमने पहले डिस्कस नहीं करा था, तो वो इसलिए डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज पुट कॉल रेशियो की जो हमने ऑब्जर्वेशंस की बात करी है, पुट कॉल रेशियो पहली बात तो क्या होता है, उसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस या सेटअप्स जिनको बोलते हैं. अब उसके लिए हमें सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा. ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस के अंदर कैसा होता है, और रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट इन केस ऑफ ऑप्शंस इज कि जो पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस करते हैं तो उसका जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं या इंटरप्रिटेशन मिलते हैं, उसका हमें थोड़ा क्लू मिलेगा, समझ में आएगा. तो टू स्टार्ट विद बेसिक्स, आई विल जस्ट कवर इन 2 minutes द बेसिक फॉर द न्यू कमर्स. कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, हम लोगों को मोर और लेस पता है.
this is what we expect. But then also to give you reference, call option का मतलब क्लाइंबिंग ऑफ प्राइसेस, जब हमारा बुलिश एक्सपेक्टेशन होता है तो एक ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन को बाय करेगा. व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस नीचे जाएगा, दैट इज ही इज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू प्लमेट, P for put and P for plummet, then he is going to go for buying a put option. And another concept is option buyer and seller. तो option seller के अंदर उसका जो gains होता है, that is limited to the premium at which he is selling the option, और risk उसका unlimited जैसा हो जाता है, because यदि कुछ मेजर इवेंट हो जाता है, मेजर वॉलेटिलिटी आ जाती है उस स्टॉक या इंडेक्स के अंदर, तो उसका जो प्राइस है इट कैन गो टू एनी लेवल. एंड लाइकवाइज ऑप्शन बायर की जहाँ पे हम बात करते हैं तो उसका रिस्क जो होता है दैट इज लिमिटेड टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम जितना उसने पे करा है, और द अपसाइड कैन बी एनीथिंग फॉर हिम. सो दीज आर द बेसिक टर्म. Talking about open interest is nothing else but outstanding contracts कितने हैं उस particular stock या index में, या जिस particular strike price को हम देख रहे हैं उस particular stock या index की. तो open interest is just that. जैसे हम कैश मार्केट के अंदर वॉल्यूम को देखते हैं, वैसे हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं. ऑल्दो कैलकुलेशन काफी डिफरेंट होता है, वॉल्यूम जैसे कैलकुलेशन नहीं होता ओपन इंटरेस्ट का, बट जस्ट टू गिव यू रेफरेंस, ओपन इंटरेस्ट इज looking on to the overall liquidity, overall participation in a particular stock or index in that contract. Now coming on to the view on PCR की जरूरत क्या है और कैसे हमें यूज कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट इन लेमन टर्म्स आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, पीसीआर आपको ओवरऑल ऑप्शन प्लेयर्स की पोजीशन दिखाता है इन जनरल, कि वेयर आर मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शन प्लेयर्स प्लेस्ड, उनका जो ओवरऑल पोजीशन बना हुआ है वो कॉल ऑप्शंस के अंदर, पुट ऑप्शंस के अंदर किस साइड में बना हुआ है, जिससे एक तो आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चलता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, स्टॉक या इंडेक्स का. और एट द सेम टाइम कुछ एक्सट्रीम जब जंक्चर्स आते हैं मार्केट के, एक्सट्रीम पोजीशंस दिखती है हमें कि मार्केट बहुत ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, या काफी बढ़ गया है, काफी घट गया है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइम पे पीसीआर की पोजीशन हमें थोड़ा सा इंडिकेशन देती है कि वहां से या तो ट्रेंड चेंज हो सकता है या फिर वोलेटिलिटी एक्सपेंशन हो सकता है. वोलेटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट F&O मार्केट, क्योंकि ऑप्शंस का जो एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है ऑप्शन प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, वो वोलेटिलिटी होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या वोलेटिलिटी जो हम बोलते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विदाउट फर्दर डिले आई विल जस्ट कम ऑन टू द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस. यस, सो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का जैसे मैंने डिस्कस करा था कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट पीसीआर को अंडरस्टैंड करने के लिए. अच्छा, हम यहाँ पे जब भी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की बात करते हैं, हम जब ऑप्शंस के अंदर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो हम ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रीड करने का ट्राई करेंगे. रीजन ये है, ऑप्शन सेलर जैसे हमने डिस्कस करा था अभी यहाँ पे दोनों के रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में, तो ऑप्शन सेलर को जो रिस्क होता है वो दैट इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू ऑप्शन बायर. इन थ्योरेटिकल टर्म्स इट इज अनलिमिटेड, और ऐसे ही उसका गेन लिमिटेड होता है. तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑप्शन सेलर जो रिस्क लेके चल रहा है वो काफी ज्यादा होती है, और उस रिस्क की वजह से एज पर द वोलेटिलिटी जो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर आती है, उससे जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसका जो M2M चेंज हो रहा है, और उस M2M को मैनेज करने के लिए, उस पोजीशन चेंज को, वोलेटिलिटी को ऑब्जॉर्व करके अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए वो जो चेंजेस करता है, जिससे ओवरऑल इस स्टॉक के और इंडेक्स के मूवमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है. तो इसलिए हम जब भी ऑप्शन का डेटा एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम हमारा व्यू पॉइंट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि व्हाट ऑप्शन सेलर आर थिंकिंग एक्चुअली, बिकॉज दे आर they have to manage their risk. They will be very responsive to any major price movement in the stock. और इवन यदि प्राइस में मूवमेंट नहीं आता है तो भी जैसे टाइम वैल्यू की वजह से उसका प्रीमियम फ्लक्चुएट होता है, तो ऑप्शन सेलर की पोजीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. यहाँ पे मैंने दो चीजें ली है. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पी राइटिंग. पी राइटिंग इज नथिंग एल्स, राइटिंग का मतलब शॉर्ट करना होता है, जो हम लेमन टर्म्स में समझते हैं. अब यहाँ पे मैंने दो चीजें जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. फर्स्ट इज पी राइटिंग. इसके अंदर पी राइटिंग हम कब बोलते हैं, जब उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है, उसकी जो स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है उसका प्राइस, उसका जो प्रीमियम है
वो नीचे आता है और साथ में उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो उस ऐसे बिहेवियर को हम पी राइटिंग बोलते हैं, और उसका जो इन्फ्रेंस हम करते हैं that we do that is considered as bullish. The reason being, I guess Akash, you can come to next slide so that I can make them understand with the help of example, right? So say this is and this is the example for you to understand it better. जैसे 10,700 का स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी का ऑप्शन है, उसका प्राइस 77 अभी चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट जो है 18,79,500 चल रहा है। यही चीज के अंदर मैं चेंज देखता हूँ कि जो प्राइस है पुट ऑप्शन का जो 77 है वो 77 से 60 आता है, और ओपन इंटरेस्ट जो 18,79,500 था वहां से वो 20 लाख हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड जो हमने एक्सप्लेन करा कि जैसे ही प्राइस जो है पुट ऑप्शन का वो नीचे आया और उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है बुलिश। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड बुलिश? बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल्फ इंडिकेशन है कि पुट का प्राइस नीचे जाना ये तभी होगा जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। पुट ऑप्शन जो हम जनरली देखते हैं कि हमने अभी देखा था प्लमेटिंग ऑफ प्राइजेस, तो जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाएगा उसका प्राइस बढ़ेगा, और यहाँ के केस में हमारा उल्टा हो रहा है, पुट का प्राइस नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज बुलिश। नाउ apart from looking on to the individual behavior of that strike price, जो उसका प्रीमियम है वो नीचे आ रहा है, साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका ये इन्फ्लुएंस इससे अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन सेलर्स आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो स्टॉक है इस पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक प्राइस को जैसे 10,700 है उसको वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से 10,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो इंडेक्स तोड़ेगा। So that's why they are selling that particular strike price put option, जिसकी वजह से उसका प्राइस नीचे जा रहा है और वहां पे हमें पोजीशंस ऐड होती हुई दिख रही हैं, which is represented by change in open interest. So that is considered bullish. Coming on to the another example, कॉल की अपन बात करते हैं। कॉल ऑप्शन के अंदर यदि या द प्रीवियस स्लाइड आकाश, हाँ, सी राइटिंग की बात करते हैं। सी राइटिंग का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे भी बिहेवियर सेम ही रहेगा, जो ऑप्शन प्राइस है, ऑप्शन प्राइस कॉल ऑप्शन जो है उसका जो प्रीमियम है वो नीचे जाता है और ओपन इंटरेस्ट उसको सपोर्ट करता है। ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे पोजीशन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कईयों बार हम देखते हैं कि जैसे हम कैश मार्केट के अंदर डिस्कस करते हैं कि स्टॉक बढ़ा बट वॉल्यूम के साथ नहीं बढ़ा, या स्टॉक डिक्लाइन हुआ बट हैवी सेलिंग नहीं आया, वॉल्यूम ने उसको सपोर्ट नहीं करा, तो हम बोलते हैं कि नहीं ये जो प्राइस आया ये सस्टेनेबल नहीं है इन आइदर डायरेक्शन इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। तो सेम केस हो सकता है इन केस ऑफ ऑप्शंस कि जब हम देख रहे हैं कि कॉल ऑप्शन का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट उसका बढ़ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड बेरिश। नाउ व्हाई इट इज कंसिडर्ड बेरिश, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल के अंदर हम देखें 10,800 का स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन का, वो 93 पे ट्रेड कर रहा था और उसका ओपन इंटरेस्ट था 23,26,350। और अब जो प्राइस में अब जो सिचुएशन चेंज हुई है, जो ये प्रीमियम है 93 से ये 80 आ गया है और ओपन इंटरेस्ट 23,26,000 से 26 लाख हो गया। नाउ व्हाई इट इज कंसिडर्ड बेरिश इज बिकॉज नाउ ऑप्शन सेलर्स आर एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तब बढ़ेगा जब ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बढ़ा रहे हैं, और बढ़ने के साथ में प्रीमियम जो है, जो प्राइस है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का 10,800 का, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो वहां पे वो शो करता है कि नाउ ऑप्शन प्लेयर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इंडेक्स है ये 10,800 के स्ट्राइक प्राइस को इजीली क्रॉस करेगा और एटलीस्ट इमीडिएटली क्रॉस करेगा। So that is considered bearish. I hope I'm clear with the example. In case you have any doubt, then please let us know in the Q&A section. So now I guess we can continue with the next part of the presentation. Akash, over to you. Thank you Hansraj sir for explaining concept of options. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक वर्ड में, एक सेंटेंस में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो पुट राइटिंग होता है हमारा बुलिश और कॉल राइटिंग होता है हमारा बियरिश। तो इसके बेसिस पर ही हमारा पूरा पीसीआर का कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं।
So now let's start with our main topic, put call ratio. So what is put call ratio? So the put call ratio is calculated by dividing the open interest of put options by the open interest of call options. तो पीसीआर में होता क्या है कि हम लोग पीसीआर का फॉर्मूला क्या है कि पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर में कॉल ऑप्शंस का होता है. सो if your ratio is greater than 1, it suggests that the put writers are more aggressive than call writers. On the other side, if your ratio is below 1, means ki if your numerator is less than your denominator, तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या होगा, 1 से नीचे होगा. तो it suggests that the writers of the call options are more aggressive than put options. So उसका भी एक रेंज होता है that we will see in our next presentation. So this is the formula of put call ratio. तो put call ratio का फॉर्मूला क्या है कि हम पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट लेंगे इंक्लूडिंग एवरी स्ट्राइक प्राइस एंड डिवाइड बाय करेंगे कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट. तो ये कैसे मिलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स, दैट वी विल सी. सो नेक्स्ट इज हाउ इट वर्क्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट 10,000 है, राइट. उसके सामने कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 5,000 है. तो हमारा पुट कॉल रेशियो होगा 10,000 डिवाइड बाय 5,000 विच इज इक्वल टू 2. सेम इन द केस ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल कि यहाँ पे 10,000 का हम लोग का पुट का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल ऑप्शंस का हमारा 10,000 का ओपन इंटरेस्ट है. तो हम लोग का पुट कॉल रेशियो होगा 10,000 डिवाइड बाय 10,000 विच इज इक्वल टू 1. इन द थर्ड एग्जाम्पल हमारा पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5,000 है और उसके सामने जो हमारा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 10,000 है. तो हमारा पीसीआर जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 0.50. तो अभी हमने समझ तो लिया कि पीसीआर रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, बट कहाँ से कैलकुलेट होता है, कहाँ से वैल्यू फाइंड करने का, दैट वी विल सी. सो ये सिंपल निफ्टी का ऑप्शंस चेन मैंने लिया है. तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, आप NSEindia.com पर जाओगे, वहां पे आप होम में जाके यहाँ पे जो आपको लाइव मार्केट दिख रहा है वहां पे जाके ऑप्शंस चेन और इक्विटी डेरिवेटिव सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो निफ्टी ही ओपन होगा आपका. सो व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसीआर आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि एक तो आप राइट सिंबल यहाँ पे सिलेक्ट करो, जो आपको कंफर्मेशन यहाँ से भी मिल जाएगा कि आपने राइट इंडेक्स जो है वो सिलेक्ट किया है. और सेकेंड चीज जो हमको ध्यान रखना है वो है एक्सपायरी डेट. यहाँ पे जो करंट एक्सपायरी होता है वही हमको सिलेक्ट करना है, ना कि हमको मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करना है. सेकेंड वन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आज थर्सडे है तो थर्सडे के दिन हम लोग को नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का एक्सपायरी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है. क्यों? बिकॉज ऑन थर्सडे अगर आप सेम एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे तो वहां पे देयर आर सो मेनी राइटर्स जो अपनी पोजीशन होता है वो शिफ्ट करते रहते हैं टू नेक्स्ट एक्सपायरी. That is why on expiry day we select next weekly expiry. तो ये हमको यहाँ पे मेन ध्यान रखना है while calculating PCR. एक कि आप निफ्टी का सिंबल सिलेक्ट करो यहाँ पे और सेकंड जो आपका एक्सपायरी डेट है वो आप सही सिलेक्ट करो. नाउ यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे एक कॉल ऑप्शंस है और यहाँ पे पुट ऑप्शंस है और हियर यू कैन सी उसका ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड है और पुट साइड यहाँ पे उसका ओपन इंटरेस्ट है. तो आप जैसे ही इस पेज को थोड़ा नीचे करोगे तो यहाँ पे एट द एंड आपको यहाँ पे मिलेगा कॉल पुट साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट और लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपको कॉल साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट. तो यहाँ पे क्या करना है आपको 3 करोड़ 10 lakhs डिवाइड बाई 2 करोड़ 45 lakhs. तो आपको एक वैल्यू मिलेगा अराउंड 1.26 से 1.25. तो ये जो वैल्यू है वो हमारा होता है पुट कॉल रेशियो. आई होप एवरीवन इज क्लियर. यहाँ तक सबको क्लियर है? Please proceed, Akash. ओके. सो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पीसीआर एक रेंज के अंदर घूमते रहता है, तो उसका रेंज जो है जो नॉर्मली उसका रेंज होता है वो 0.50 से लेके 1.50. सो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले सकते हो कि ये रेंज के अंदर हमारा पीसीआर जो है वो घूमते रहता है. सो आपने जनरली देखा होगा कि पेंडुलम आपको सबको पता होगा कि इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, राइट.
तो सेम इन द केस ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर भी आप देखोगे तो 0.5 से लेके 1.5 के बीच में घूमते रहता है। सो व्हेन यहाँ पे 1 है, मींस कि अभी पता नहीं है मार्केट को कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो व्हेन इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 1.50, तो ये जो 1 से लेके 1.50 का जर्नी होता है वो हमारा बुलिश जर्नी होता है। सेम उसके ऑपोजिट आप यहाँ पे देखोगे से 1 से लेके 0.50 का जो जर्नी है, उसके 1 से लेके व्हेन योर पीसीआर इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स 1.50, तो ये यहाँ पे जो होता है वो बियरिश जर्नी होता है। सो यहाँ पे भी आपको एक पता चलेगा कि एक ओवरबॉट जोन होता है और एक ओवरसोल्ड जोन होता है। कि राइटर्स आप देखोगे कि व्हेन योर पीसीआर रेशियो इज मोर देन 1.50, तो ये ओवरबॉट जोन में आ जाता है, और चांसेस मोर चांसेस आर देयर कि वहां से आपका जो निफ्टी है या आपका जो पीसीआर रेशियो है वो यहाँ से नीचे आएगा टुवर्ड्स 1। एंड सेम इन द केस कि आपका मार्केट गिरते गिरते पीसीआर गिरते गिरते 0.50 आया एंड इट वेंट डाउन टू 0.40, मींस बिलो 0.50, तो ये एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाता है। तो मोर चांसेस आर देयर कि यहाँ से आपका जो पीसीआर है वो टुवर्ड्स 1 आपका डायरेक्शन लेगा। सो इट मूव्स बिटवीन 0.50 टू 1.50। सो इसका भी एग्जैक्ट रेंज क्या होता है वो हम इस नेक्स्ट उसमें देखेंगे। So this is how you interpret PCR ratio. So if you want, you can again take screenshot of this, or you can take photo of this. So यहाँ पे PCR interpretation कैसे करना है कि when your PCR ratio is between 0.8 to 1.2, तो मार्केट में अभी भी इनडिसीजन है कि, और साइडवेज है मार्केट, कि मार्केट को पता नहीं है अभी, और पीसीआर को पता नहीं है अभी कि कौन से डायरेक्शन में ये मूव करेगा। व्हेन योर पीसीआर रेशियो 0.8 को ब्रेक करता है एंड टूवर्ड्स मूव करता है 0.50, उसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिनोमिनेटर जो है, कि जो आपका पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला था पुट ऑप्शन डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, इट मींस क्या हो रहा है कि आपका जो बेस है नीचे का जो वैल्यू है कॉल ऑप्शन वो ज्यादा राइट हो रहे हैं, मींस की मोर कॉल्स बीइंग सोल्ड। कॉल सेल कम करते हैं जब हम लोग को लगता है कि मार्केट यहाँ से बियरिश है। सो इट मूव्स टुवर्ड व्हेन इट मूव्स टुवर्ड 0.5, तभी हमको यहाँ पे बियरिश इंडिकेशन मिलता है। और सेम ऑपोजिट साइड, इफ योर रेशियो इज पीसीआर रेशियो इज ब्रेकिंग 1.2, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि आपका जो 1.2 से 1.5 का जर्नी है उसमें क्या होगा कि आपका न्यूमरेटर जो होता है पुट साइड का, मींस की पुट जो हमारा ऊपर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ साथ भी हम लोग का जो पुट कॉल रेशियो है वो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन यू सी कि योर पीसीआर रेशियो इज गोइंग अबव 1.2, तो वहां पे हम एक बुलिश इंडिकेशन मिलता है कि यस यहाँ से निफ्टी हमारा ऊपर जाएगा। एंड सेकंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेन पीसीआर रेशियो है वो हम मेजरली इंडेक्स में ही कैलकुलेट करते हैं, मोस्टली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आगे जाके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे पीसीआर का इंटरप्रेट होता है, कैसे हम लोग इसको इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो भी हम सब आगे जाके देखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ एग्जांपल, लेस देन 0.5। सो एज यू कैन सी कि निफ्टी जो है व्हेन योर पीसीआर रेशियो इज बिलो 0.5, ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाता है, मींस कि राइटर्स आर मोर एग्रेसिव। नाउ एक पॉइंट आके एक लिमिट आएगा कि कॉल राइटर्स राइट करते करते स्टॉप हो जाएंगे, एंड एट दैट टाइम पुट राइटर्स विल बिकम लिटिल बिट एग्रेसिव। तो क्या होगा कि व्हेन योर पीसीआर रेशियो इज बिलो 0.5, तो वहां से एक चांसेस है कि निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है ये एक के तरफ, मींस कि जो हम लोग का साइडवेज मूवमेंट है, इंडिसिसिवनेस है यहाँ पे मिडल पॉइंट की टुवर्ड्स मूव करेगा। इट्स काइंड ऑफ मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन कैसे होता है कि सपोज इफ योर रेशियो इज बिलो, आपका रेशियो जो है वो 1.5 के पास जाता है, अगेन इट कमिंग बैक टू योर मीन विच इज 1, अगेन ये 0.5 की तरफ जाता है, अगेन इट कम बैक टू 1। तो ये मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी भी इसको हम बोल सकते हैं। सेम इफ योर रेशियो इज ग्रेटर देन 1.5, मींस कि आपके जो राइटर्स है वो ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं, तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो टॉप यहाँ पे बनने वाला है, और चांसेस आर देयर कि आपका जो पीसीआर रेशियो है वो 1 के टुवर्ड वापस मूव करेगा, मींस कि वहां पे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि नाउ यहाँ से आपका पीसीआर रेशियो जो है वो नीचे आने वाला है। एनी डाउट इन दिस पीसीआर इंटरप्रिटेशन? Akash,
Yes. Shamala Behti had a question on the chat panel. Can you please have a look at that? Okay. And even Girish Palvarma and T Manish, I think, are not too sure on that. So can you please repeat what you mentioned? Okay. So, earlier? but it look at the strike price. So yes, Anuj, I've seen that question. So yes, whenever we are calculating PCR, we have to take in account all the All strike the strike prices. price. We can't just go by looking at the single strike price or the strike price on which we are going to take a trade. So it is always, cumulative. So because you have to look onto the overall picture of of the overall market, not on a single strike price. So that's why we have to consider while calculating PCR, we have to consider all the strike prices. Yes, Also, can you we can. share that PCR link from the Nifty PCR Sure, link, please? sure, Yes. sure. Yes. We'll send here. हाँ Yes, जी. Akash, we can go ahead, I guess. यस तो अभी हम लोग एग्जांपल्स में आ जाते हैं कि हाउ पीसीआर कैसे पीसीआर ने पोजिशनल यहाँ पे हमको पता चला था कि यहाँ पे पीसीआर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है और वहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और एकदम बॉटम पे जो पीसीआर है उसका हम लोग पोजिशनल और फिर उसके बाद देखेंगे कि आफ्टर पोजिशनल कि हायर टाइम फ्रेम में हम लोग ने एक सिलेक्ट कर लिया कि पीसीआर का रेशियो ये है उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में मींस कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में जाके पीसीआर कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे ट्रेड लेना है वो भी हम एग्जांपल्स में देखेंगे. Sorry to interrupt you, Akash. Akash, if you Yes. can come to the previous chart, the previous slide. Yes, this one only. So what Akash has explained here is correct. Just that, just to tell you that this is our reference range which we follow or we have seen. So these are not rules as such, but these are basic guidelines. And while interpreting any tool, आप अपनी तरफ से go through sufficient number of examples in the past. कोई भी टूल की जब हम बात करते हैं एनालिसिस की बात करते हैं हमें खुद उसके पहले कुछ एक सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स चेक करना चाहिए एंड आफ्टर दैट वी शुड स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इन आवर ट्रेडिंग डिसीजंस. सो यहाँ पे जो ये रेफरेंस रेंज आपको दिया है these are definitely our guidelines or the way we have seen it working in the past. So these are not hardcore rules. So just to clear you on that, Akash, you can proceed. So now let's look at PCR positional chart. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो भी पिक एंड ट्रप्स है यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं और उस टाइम भी उसका जो पीसीआर क्या था वो हमने यहाँ पे शो किया है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो पीसीआर रेशियो है वो एग्जैक्टली 0.5 से ही होगा रिवर्स होगा या एग्जैक्टली 0.1.5 से ही रिवर्स होगा. इट कैन बी प्लस माइनस 0.1% आल्सो मींस कि थोड़ा भी ऊपर नीचे हो सकता है. सो एज यू कैन सी कि जो मार्च के अंदर फॉल आया था और जो एग्जैक्ट बॉटम 23 मार्च को निफ्टी ने बनाया था वहां पे उसका पीसीआर रेशियो देखोगे तो 0.36 था. मींस कि जो राइटर्स थे कॉल राइटर्स थे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे और यहाँ पे हम लोग को एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट में ऊपर आ सकता है कि मैं यहाँ से बाउंस बैक हम लोग को मिल सकता है. सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली पीसीआर हैज वर्क. अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर गया निफ्टी. अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे जो टॉप बनाया उस टाइम पे निफ्टी का जो पीसीआर वैल्यू था वो 1.25 था. अगेन निफ्टी ने यहाँ पे एक डिप दिया. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीसीआर का जो रेशियो था वो 0.61 था. यहाँ पे उसके बाद जो निफ्टी ऊपर आया और यहाँ पे जो टॉप बनाया वहां पे उसका पीसीआर का जो वैल्यू था वो 1.43 था. तो ऐसा नहीं है कि आपको एवरी टाइम रीडिंग यहाँ पे परफेक्ट ही मिलेगा. अभी ये एग्जांपल में आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो पीसीआर है वो थोड़ा साइडवेज रहा और निफ्टी भी उसके साइड थोड़ा साइडवेज रहा. बट अगेन जो जंप आया उसके अंदर आप देख सकते हो कि पीसीआर का वैल्यू सिर्फ 1.23 ही था एंड उसके बाद भी निफ्टी ऊपर चलते गया. तो यहाँ पे हम लोग को एक पता चलता है पीसीआर के वैल्यू से कि कहाँ पे हमारा मनी फ्लो हो रहा है. मींस कि राइटर्स आर व्हिच राइटर्स आर मोर एक्टिव, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स. यहाँ पे हमको क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया था कि निफ्टी जो पीसीआर है उसने 1.54 का जो टॉप बनाया तो यहाँ से हमको एक सेकेंड डे भी कंफर्मेशन मिला कि निफ्टी नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे एक हम लोग शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे. और इसके पीसीआर के हेल्प से हमने काफी सारे निफ्टी में भी ट्रेड्स दिए हैं, इंट्राडे में भी दिए हैं और पोजिशनली भी दिए हैं.
सो इट यू नो इफ यू रीड करेक्टली तो आपको इसमें काफी सारा अच्छा जो है यू कैन ट्रेड वेरी ब्यूटीफुली बाय यूजिंग दिस पीसीआर चार्ट। यहाँ पे आप बॉटम पे देख सकते हो कि निफ्टी ने जो पीसीआर का चार्ट बनाया था, पीसीआर ने जो लो बनाया था वो 0.58 का था। सो यहाँ से 1.54 का धीरे धीरे नीचे आके पीसीआर ने जो लो बनाया था वो 0.58 का था। अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप और उसने यहाँ पे टॉप बनाया था 1.36 का, और उसके बाद हमको कंफर्मेशन भी मिला था कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। यहाँ पे अगेन निफ्टी ने जो लो बनाया था वो बनाया था 0.64 का पीसीआर ने। अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो पीसीआर है उसने हाई बनाया था 1.52 का। अगेन इट स्टार्टेड थोड़ा नीचे आया, थोड़ा साइडवेज रहा, अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप। और अभी आप देख सकते हो पीसीआर का पोजीशन कि अभी निफ्टी का जो पीसीआर है विच इज राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1.42 लेवल। तो काफी थोड़ा आप यहाँ पे बता सकते हो कि थोड़ा ओवर सोल्ड सिचुएशन में यहाँ पे निफ्टी आ चुका है। Hansat sir, anything you want to add here? Yes. So just to add to what Akash said, so this picture is presented to you not to tell that every peak and trough is coinciding with PCR values की जब PCR का वैल्यू लो बन गया वहाँ पे बॉटम बन गया, जब हाई जोन आ गया वहाँ पे टॉप बन गया। इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट दैट कि हमने रिसेंट जो पीक्स और ट्रफ्स थे निफ्टी के अंदर वहाँ पे पीसीआर की वैल्यूज देखी एंड वी जस्ट ट्राई टू फाइंड कि कौन सी ऐसी जोन्स हैं। तो ये जो सामने आपके रेफरेंस जोन रखी थी, हमने टेबल दिखाया था, दैट इज नथिंग एल्स बट जस्ट द ऑब्जर्वेशंस इन द पास्ट जो हमने देखी। सो इट शुड नॉट बी रेड दिस वे कि नहीं 0.36, जैसे हम टू स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल 0.36 आ जाता है। अब ये 36 आने के पहले वो कब से ओवरसोल्ड होना स्टार्ट हो गया दैट वी डोंट हैव ऑन दिस चार्ट एज ऑफ नाउ। तो हो सकता है वो जो जोन है वो 0.6 की पहले से आ गई हो, 0.6 0.5 पहले आ गई और फाइनल बॉटम जो 0.36 पे बना है। सो यहाँ पे रेफरेंस इसलिए आपको दिया गया है सो दैट जो भी आप टूल्स अभी यूज कर रहे होंगे टू एनालाइज निफ्टी, आई एम श्योर यू मस्ट बी यूजिंग वेरियस अदर टूल्स, उसके साथ में यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस एज अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर कि जैसे मैं जब ट्रेड करता हूँ F&O मार्केट के अंदर जो भी मैं अदर टूल्स यूज करता हूँ बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, टेक्निकल्स, व्हाटएवर, with that I can start looking at this parameter as well because we have seen ये जो रेफरेंस रेंज आपको दिया है और ये पोजिशनल एग्जांपल है, ऐसे हम आगे लाइव मार्केट के अंदर कैसे एनालाइज करते हैं उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यूज आपको पीसीआर की दी है दीज आर एंड ऑफ डे वैल्यूज, एवरी एंड ऑफ डे हुई है, लाइव मार्केट की वैल्यूज नहीं है। सेकेंडली हमने देखा है कि जब भी एक्सट्रीम जोन्स आते हैं वहां के आसपास पीसीआर के अंदर हमको काफी बार इंडिकेशन ऐसा मिलता है। सो जस्ट टू क्लियर यू ऑन दैट फ्रंट। और जैसे आप ये वैल्यूज यहाँ पे हमने अभी जो भी मार्च से लेकर के अभी तक चार्ट किया है, लाइकवाइज यू कैन गो डेफिनेटली इन द पास्ट एंड चेक कि पीसीआर वैल्यूज क्या था। देखिए कभी भी कोई टूल का जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हम when we start actually applying a particular tool in our trading decisions, उसके पहले आप अपने एंगल से उसे एनालाइज कर लीजिए बिकॉज एट द एंड यू आर गोइंग टू यूज इट। और उसको यूज करने के पहले यू शुड हैव सफिशिएंट एग्जांपल टू डेवलप फेथ ऑन दैट टूल कि ये एक्चुअली टूल जैसा बताया है वैसा वो वर्क करता है कि नहीं करता है। सो गो थ्रू सफिशिएंट एग्जांपल्स इन द पास्ट and then you can probably define whether it can actually help you in your trading decisions. As per our understanding, this is a very good tool and we are using it very frequently and giving lot of importance in both our positional and intraday trading. So that's it from my side. Akash, you can continue. So हाँ सर, काफी सारे क्वेश्चंस आए यहाँ पे कि दिस पीसीआर रेशियो इज, यस दिस पीसीआर रेशियो इज एंड ऑफ द डे पीसीआर रेशियो। और ये जो पीसीआर रेशियो है वो हमने वीकली एक्सपायरी का कैलकुलेट किया है ईओडी के बेसिस पे, और थर्सडे के दिन हम लोग नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कैलकुलेट करते हैं क्योंकि काफी सारी पोजीशन जो होती है वो शिफ्ट हो गई रहती है यहाँ से, दिस वीकली एक्सपायरी टू नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में शिफ्ट होती है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी लेते हैं। एंड और काफी सारे क्वेश्चन आए कि बैक टेस्ट कैसे करना है, इसको हिस्टोरिकल डेटा कहाँ से मिलेगा। तो आप निफ्टी NSE.India.com की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको F&O की भाव कॉपी मिलेगी। वहाँ पे हिस्टोरिकली आप लास्ट 6 महीने की 8 महीने की आप भाव कॉपी डाउनलोड करके वहाँ से आप बैक टेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको उसका डेटा भी मिल जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं पीसीआर इंट्राडे चार्ट। अभी हमको हायर टाइम फ्रेम में तो पता चल गया है कि ये साइडवेज मार्केट में है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में है या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। फिर इसको इंट्राडे में लेके ट्रेड कैसे करना है ना, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो niftytrader.in करके एक वेबसाइट है। वहां पे आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको निफ्टी का डेली का जो लाइव पीसीआर है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और एवरी 3 मिनट ये जो डेटा है वहां पे अपडेट होता रहता है। तो फ्रॉम देयर यू कैन चेक दिस कि यहाँ से आपको जो डेली का जो लाइव पीसीआर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है वो पीसीआर की लाइन है, और जो रेड लाइन है वो निफ्टी की लाइन है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपको फर्स्ट 1 घंटा तो देखना है कि स्टार्टिंग का जो 1 आवर होता है वो आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि पीसीआर रेशियो वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके बाद जाके आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे इफ यू सी Akash, sorry फ्रॉम to interrupt. 9:15, Can you please repeat the name of the website, please? वेबसाइट नेम इज niftytrader.in. I'm pasting the link there, Hanos. Sure. Thank you, Hansraj bhai. Continue, Akash. Sorry. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पे हमको पता चला कि निफ्टी यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट दे रहा था। बट पीसीआर आप देख सकते हो कि 9:15 से लेके 10 ओ क्लॉक तक, 11 ओ क्लॉक तक कंटिन्यूअसली ये अपसाइड ही जा रहा था। मींस कि आप पीसीआर रेशियो इन शॉर्ट है क्या, पुट राइटर्स डिवाइड बाय कॉल, पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट। इफ योर रेशियो इज इंक्रीजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, मींस कि मॉर्निंग से ही आप देखोगे कि पुट राइटर्स हैवी है कॉल राइटर्स पे, मींस कि निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी में एक अराउंड 100 पॉइंट का डिप आया, बट ऑन द सेम टाइम आप यहाँ पे निफ्टी का पीसीआर देखोगे तो पूरा साइडवेज था और मोस्टली अप ट्रेंड में था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक डिप आया और वापस निफ्टी ने न्यू डेज हाई बनाया। तो यहाँ पे आप सिंपल डाउ थियरी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ले सकते हो कि व्हेन योर निफ्टी इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, तो एट दैट टाइम यू कैन ट्रेड एंड यू कंटिन्यूअसली पीसीआर जो है कंटिन्यूअसली हाई मार रहा था। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, फिर अगेन उसने जो प्रीवियस जो लो था उसका, उसने कभी भी पूरे दिन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसने वायलेट नहीं किया था। सो एवरी जितना भी निफ्टी के अंदर डिप आया, अगेन मार्केट ने न्यू हाई मारा। यहाँ पे भी डिप आया 50 पॉइंट का, वापस निफ्टी ने न्यू हाई मारा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड बेस्ड ऑन निफ्टी पीसीआर। सो सिंपल आपको यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ पे लेके चलना है कि योर पीसीआर रेशियो आपको मॉर्निंग से देखना है कि कैसे कौन से ट्रेंड में जा रहा है, और उसी ट्रेंड में जब आपको निफ्टी में डिप मिलता है उस टाइम पे आपको देखना है कि आपका पीसीआर का जो इंडिकेशन है। सो काफी टाइम हम आगे भी जाके देखेंगे कि निफ्टी ने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था, जैसे कि यहाँ पे भी हमको क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि मॉर्निंग से ही पुट राइटर्स जो तो हैवी थे कॉल राइटर्स पे। सो पीसीआर रेशियो हम लोग का कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा था, एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली ओनली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्टॉक्स में हमने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, बिकॉज यू नो कि मोस्ट ऑफ द 70 to 80% ऑफ द ऑप्शंस का जो वॉल्यूम होता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है। सो जहाँ पे वॉल्यूम होता है वहां पे ये चीज काफी अच्छे से वर्क करती है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे बियरिश वाला। सो मॉर्निंग से 9:15 से ये हम लोग को पता चल गया कि कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ पे पुट राइटर्स पर हैवी है। तो मॉर्निंग में हम लोग को एक काफी देखने मिल गया कि 1.15 वाला सीधा 0.85 विद इन 15 to 20 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग आप देख सकते हो हैवी कॉल राइटिंग हुआ है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द निफ्टी यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पूरा साइडवेज ही था। द मोमेंट इट ब्रोक प्रीवियस लो यहाँ पे अराउंड 9,000 और 8980 यू कैन सी शार्प डिक्लाइन। तो यहाँ पे हमको एक देखने को मिला कि पीसीआर जो रेशियो जो होता है, मींस कि यहाँ पे कॉल राइटर्स मॉर्निंग से ही हैवी थे पुट राइटर्स पे। तो यहाँ पे हमको एक शार्प डिक्लाइन अराउंड 9,000 से लेके 8,900 मींस कि अराउंड 100 पॉइंट्स का हम लोग का शार्प जो है यहाँ पे डिक्लाइन देखने के लिए मिला। तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम पीसीआर रेशियो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा, जैसे कि हम लोग को इसमें इंडिकेशन मिल गया था कि ये अप ही जाएगा, इसमें इंडिकेशन मिल गया था कि ये डाउन ही जाएगा। तो समटाइम्स पीसीआर का जो वैल्यू होता है सो इट इज सो डायनामिक कि हंसराज सर ने बताया कि राइटर्स को जो है हमेशा अपनी पोजीशन मैनेज करनी पड़ती है।
फॉर एग्जांपल कुछ भी न्यूज आ गया तो उन लोगों को जो पोजीशन है वो कट करके शिफ्ट भी करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर कट इंडिकेशन एवरी टाइम ही मिलेगा, तो काफी टाइम आपको जो इंडिकेशन है वो गलत भी मिल सकता है, और काफी टाइम आपका हो सकता है कि इफ यू ट्रेड 10 टाइम्स तो आपका 3 टाइम्स स्टॉप लॉस भी हो उसमें। तो तभी आपको क्या करना है कि आपको जो पोजीशन है वो पीसीआर के अकॉर्डिंग वहां पे लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीसीआर काइंड ऑफ साइडवेज था और अप ट्रेंडिंग में था मॉर्निंग से लेके। बट आप आफ्टरनून सेशन में देखोगे कि आफ्टर 12 पीसीआर ने जो यहाँ पे उसका जो 1.10 का लो बनाया था वो यहाँ पे आके उसने ब्रेक किया 1.10 का एट अराउंड 1। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बाई किया होता, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस होता था, राइट। फिर यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होती कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1.10 जो मॉर्निंग का उसका लो था उसने यहाँ पे ब्रेक किया है, तो अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन ली होती अगर अराउंड 9150, तो आपको काफी अच्छा 250 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आपको देखने मिलता। सो अकॉर्डिंग टू पीसीआर आपको ट्रेड लेना है। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन और कंक्लूजन बिहाइंड दिस पुट कॉल रेशियो ट्रेडिंग। नेक्स्ट यहाँ पे हम फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। ये भी काफी टाइम ऐसा होता है निफ्टी में कि मॉर्निंग से हम लोग को नीचे निफ्टी नीचे आता है, फिर आफ्टर इन सेकेंड हाफ निफ्टी वहां से रिकवर होता है। तो वहां पे भी आपको पीसीआर का जो कैलकुलेशन है, जो पीसीआर है वो भी यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीसीआर थोड़ा साइडवेज था, अगेन इट स्टार्टेड, उसका जो 1.10 का लो था यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप निफ्टी के शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो अराउंड 9260 9240। अगेन यहाँ से आपको ब्यूटीफुली 150 पॉइंट का जो है वो मूव मिला। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली निफ्टी का जो पीसीआर है वो कंटिन्यूअसली लोअर लोज ही मारा था। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि पीसीआर जो है काइंड ऑफ साइडवेज हो गया एंड पीसीआर ने नया लो जो है वो नहीं मारा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर लो मारा, यहाँ पे भी हायर लो मारा। इन निफ्टी ने जब उसका हायर का जो टॉप था वो यहाँ पे ब्रेक किया अराउंड 230 के आसपास, तो अगेन वी सॉ अ शार्प अप मूव। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड। सो एनी क्वेश्चन इन दिस? यस, ये लाइव मार्केट में अपडेट होता है सर। So now, Hanu sir, quiz time. Sure, Akash. I think you should start your quiz and then I'll begin the poll. Okay, so यहाँ पे मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगा और जो भी राइट आंसर देंगे उसके लिए हम लोग ने अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स भी यहाँ पे रखे हैं। तो मेक श्योर कि आप सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है पीसीआर रेशियो का, कि आप उस पोजीशन पे होते थे तो आप कौन सा ट्रेड लेते थे, बुलिश ट्रेड लेते थे या बियरिश ट्रेड लेते थे निफ्टी के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्विज 1। तो जब मैं आंसर पूछू, आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगा, तो वहां पे आपको टिक करना है कि वेदर योर निफ्टी विल गो डाउन और इट विल गो अप। तो ये दो आपको आएंगे और जो भी जल्दी से फास्ट उसका आंसर देगा उसको यहाँ पे गिफ्ट भी हम लोग ने रखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्विज 1। सो एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल कि आपका जो निफ्टी का है पीसीआर, जो ब्लू लाइन है हमारा पीसीआर है और जो रेड लाइन है वो यहाँ पे निफ्टी का है। सो आपने देखा कि मॉर्निंग से काइंड ऑफ फ्लैटिश और डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था और निफ्टी यहाँ पे थोड़ा अपसाइड में था। बट यहाँ पे हम लोग को एक पता चल गया था कि कॉल राइटर्स आर मोर एग्रेसिव, बिकॉज यहाँ से आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा ट्रेड लोगे, कि बुलिश ट्रेड लोगे या बियरिश ट्रेड लोगे? Anuj sir, whether it will go up or it will go down. You must have received one window. The So in poll that is case, live. you answer. Poll is live. Please answer in Poll the is poll. live. चैट बॉक्स पे प्लीज रिप्लाई मत कीजिए, चैट इस पे कीजिए। Poll पे कीजिए please. So you have around 10 second time to answer this. Yeah. Okay. I'll be ending this poll in 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So इसका आंसर है, तो ये फ्राइडे का मीन्स कि कल के दिन का ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि आपका जो पीसीआर रेशियो है, ऑब्वियसली आंसर इज बैंक निफ्टी विल गो डाउन। यहाँ पे हमने देखा कि मॉर्निंग से ही लेके
So 41% of 63% of the people are right कि निफ्टी Wow. विल गो डाउन. सो यहाँ पे हमने देखा कि पीसीआर का जो रेशियो है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग फेज में था, और उसके साथ साथ हम लोग को बैंक निफ्टी भी देखा कि ये कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड जा रहा है, और उसने प्रीवियस जो लो था उसका वो ब्रेक कर दिया है यहाँ पे. इट मीन्स कि आपका जो डिनोमिनेटर है कॉल राइटर्स वो हैवी है पुट राइटर्स पे, इसके लिए आपका जो पीसीआर रेशियो है वो यहाँ से नीचे जा रहा है. सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखोगे कि अराउंड 22,700 से लेके 22,300 तक निफ्टी अराउंड 400 टू 500 पॉइंट्स अगर आपने पीसीआर के बेसिस पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया होता तो आपको यहाँ पे मिलते थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विज 2. सो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एवरीवन नोज हियर कि ब्लू लाइन यहाँ पे पीसीआर का है और रेड लाइन यहाँ पे इंडेक्स है. तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ से अप जाएगा कि नीचे जाएगा. अभी यहाँ से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सा लाइन पीसीआर का है एंड कौन सा लाइन निफ्टी का है. So, Hanush sir, ready? Please show the second screen, second slide. This is Yeah. Question 2. Yeah, So no. what? तो Just यहाँ start पे it. क्या लगता है आपको कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या कि निफ्टी नीचे जाएगा? The poll is live. Request all attendees to comment in the poll, please, and not in the chat window. Please reply in the poll window and not in the chat window. Be stopping the poll in 5 seconds now. So answer is yes, around 85%. So right, 65, 68 से means 85% people को तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है और कैसे पीसीआर को रीड करना है. सो यस, योर आंसर वाज राइट कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा. तो ये जो है निफ्टी का पीसीआर है और निफ्टी का चार्ट है. तो आप कंटिन्यूअसली देख सकते हो कि निफ्टी जो है पीसीआर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, मींस कि पुट राइटर्स जो है वो हैवी थे कॉल राइटर्स पर. तो आप कभी भी ट्रेड करोगे पीसीआर में तो आपको ये लॉजिक से ट्रेड करना है कि कौन हैवी है, पुट राइटर्स हैवी है, कॉल राइटर्स हैवी है. इफ आपका पुट राइटर्स हैवी है तो आपको पता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, एंड इफ योर कॉल राइटर्स आर हैवी ऑन पुट राइटर्स तो यहाँ से आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा. सो थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्विज. So this is the question. So you have to answer whether it will go up or it will go down. Blue line is PCR line and red line is Nifty line. Kindly reply in the poll window, please. Kindly reply to the poll and not on the chat box. I'll be stopping the poll in 5 seconds. So 89, yes. So slowly ratio is increasing कि 63 से 85, 85 से 89. तो आई होप सबका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो मेजोरिटी का यहाँ पे क्लियर है कि निफ्टी को हम लोग को पीसीआर का कैसे रीड करना है. सो ऑब्वियसली यस, इट विल गो डाउन ओनली. सो ये फ्राइडे का है निफ्टी का चार्ट. फ्राइडे का निफ्टी का पीसीआर और निफ्टी का चार्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉर्निंग से लेके ही जो थे कॉल राइटर्स वो हेवी थे पुट राइटर्स पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियर कट इंडिकेशन हम लोग को मिल गया था. व्हेन यू कैन सी यार कि निफ्टी आपका कंटिन्यूअसली हाई जा रहा है बट पीसीआर रेशियो कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन. आपको आप कंटिन्यूअसली देख सकते हो कि पीसीआर ने नया लो ही बनाया है.
एट दैट टाइम जो आपका निफ्टी है वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड जा रहा था। तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल गया है, एंड व्हेन आपको लगेगा कि यहाँ पे आपके अदर टूल से यहाँ पे लगेगा कि निफ्टी अब यहाँ से नीचे जाएगा, सो एट दैट टाइम यू कैन टेक शॉर्ट ट्रेड। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्विज 4. So this is the question, so you have to answer whether it will go up or it will go down. Are we stopping the poll in 5 seconds now? ओ ग्रेट, 92% ने आंसर राइट दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा रेशियो भी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, फ्रॉम 65 से लेके 92। सो आई होप सबका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि निफ्टी थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिया एंड इट अगेन स्टार्टेड मूविंग अप। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया था कि निफ्टी यहाँ से जो है वो कंटिन्यूअसली, मीन्स कि आपका जो पुट राइटर्स है वो हैवी है कॉल राइटर्स पे। तो यहाँ पे हमको देखने मिल गया कि निफ्टी कंटिन्यूअसली वाज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, उसके साथ पीसीआर भी हम लोग का हायर हाई मार रहा था। सो यहाँ पे आपको दो चीजें वाइल ट्रेडिंग पीसीआर, आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो पुट रेशियो है, आपको सिंपली ये देखना है कि आपका जो पुट राइटर्स हैवी है या कॉल राइटर्स हैवी है, दैट्स इट। आपको वही आपको यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा और काफी टाइम आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है या तो फिर यहाँ से निफ्टी नीचे ही जाने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। So now we are come back to, sorry to interrupt you, can you come back to previous slide? हाँ, this one. एक तो just to there are two things to note here. First is on expiry day, instead of using current expiry, this is expiry day Thursday, weekly expiry के हमने examples लिए थे. So if we are looking on to on a expiry day, then select next expiry, because yes, of the rollover of positions, this ratio will be very volatile on expiry day. So if you are analyzing this chart or looking onto this chart on an expiry day, look on to next expiry instead of the current one. So when you will open this website, तो वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में वहाँ पे एक एक्सपायरी के लिए सिलेक्ट करने का एक ऑप्शंस भी आएगा। तो वहाँ पे थर्सडे के दिन आपको ध्यान रखना है कि आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो है उसको सिलेक्ट करें, ना ही करंट वीकली एक्सपायरी। तो ये एक while using this tool आपको एक मेन चीज जो है वो ध्यान में रखना है। And another thing is, as I mentioned earlier also, कि first of all, for the people who are new to F&O market, so F&O market is very different from cash market. So just don't start trading using whatever tools we have discussed right away. Just have go through sufficient of number of example in the past. Go for paper trading first. Either you can do it yourself, or you can take advice from people who are analysts and having good research like us people. We are already having our various products for options, cash segment, short term, long term. So either take help of people like us, or if you are implementing yourself, first go through sufficient number of examples and then actually start putting trading decisions based on this. So this was a thing which should be followed. I guess we can now have question and answers. Akash, we can start with question and replying to the queries which are asked by the people. So यहाँ पे एक दीपक सर पूछ रहे कि मंथली पीसीआर इज नॉट रिलेवेंट। नहीं सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो है वो वीकली एक्सपायरी में ही एक्टिव होते हैं। कि आप देखोगे कि आपको अगर शॉर्ट भी करना है या कॉल ऑप्शन भी लेना है तो ज्यादा करके वहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा मंथली एक्सपायरी में, तो आपको वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड लेना है सर यहाँ पे, और उसका ही पीसीआर मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेवेंट होता है। And someone has asked what other technical analysis indicators you deploy.
So there are two things. जब हम किसी भी particular indicator को use करते हैं, किसी भी tool को, first of all उस particular tool का कितना success ratio है, failure है, वो उसको individually हमें analyze करना चाहिए. जैसे हमने यहाँ पे जब examples लिए तो हमने निफ्टी के साथ सिर्फ पीसीआर को लिया और उसका behavior चेक करा. Talking about other tools which are good, so we have already discussed in our previous webinars. हर टूल का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है. आप कौन से टूल से कंफर्टेबल हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, किस टाइप का आप ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं. जनरली पॉपुलर इंडिकेटर्स जो अच्छे हैं और जो हम रेकमेंड करते हैं, तो उसमें हम 3 इंडिकेटर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. फर्स्ट इज एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस ट्रेंड फॉलोइंग के लिए. MACD इज अनदर वन जिसको वी गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. एंड द थर्ड वन इज RSI. So these are 3 indicators which you can start applying on the charts. So पीसीआर की तरह सीपीआर भी होता है. सर सीपीआर के बारे में आई हैव नो आइडिया. No. पीसीआर विक्स के बारे में किसी ने पूछा है कि वी टोल्ड कि विक्स नीचे लगता है 29 26, तो वो इवन 26 का लेवल भी तोड़ दिया है. सो वी आर वॉचफुल फॉर अ रिवर्सल. अभी तक इंडिया विक्स के अंदर रिवर्सल नहीं हुआ है, बट दैट वाज द जोन व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग. सो यस, डेफिनेटली वी आर कीपिंग अ वेरी क्लोज वॉच ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिया विक्स. और यदि उसमें रिवर्सल आता है तो देन डेफिनेटली इट वुड बी अ साइन ऑफ कॉशन फॉर द मार्केट. सो यहाँ पे समवन इज आस्किंग आई एम न्यू टू ऑप्शंस. तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस भी वहाँ पे देख सकते हो. तो हम लोग ने ये दिस इज अवर थर्ड सेमिनार जो हम लोग ऑप्शंस पे कंडक्ट कर रहे हैं. तो आप आगे के 2 भी देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. One person asked, select next expiry only for Thursday. हाँ, yes, only for Thursday. Can you So please यहाँ पे repeat all the 3 indicators again, please? Indicators which I told, moving averages, MACD. Moving averages is again very vast, so you can, the popular ones are simple moving average and exponential moving average. So those two, and with that MACD and RSI, relative strength index, these 3 indicators you can start with. Which are the other indicators which suits with PCR? No, so as I mentioned that we haven't gone for that kind of combo. And while describing this PCR, I already said कि जब हम पीसीआर को देख रहे हैं तो ऑलरेडी टू स्टार्ट विथ यू कैन स्टार्ट यूजिंग एज अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर. इट शुड नॉट बी योर मेन इंडिकेटर टू टेक योर डिसीजन अनलेस एंड अनटिल अपने पास्ट के एग्जांपल्स देख के यू हैव डेवलप्ड फेथ ऑन दिस इंडिकेटर एंड और यू हैव डिराइव्ड ऑन द कंक्लूजन दैट दिस इंडिकेटर वर्क्स और नॉट. तो आप उसे जो भी आपके एग्जिस्टिंग मेथड होगी जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करते होंगे उसके साथ में पीसीआर को इंक्लूड करके स्टार्ट करिए. रही बात हमारी, हम जिन जिन इंडिकेटर्स को देखते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू RSI, MACD, moving averages. So someone is asking at 0.5 PCR we can expect market to move to 1. तो ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट 0.5 से भी होता है, हो जाएगा आपका रिवर्स. बट यस, आपको एक 0.5 के अगर इफ योर पीसीआर रेशियो इज बिलो 0.5 तो वहां से फॉर एग्जांपल 0.36 हमने एक्सट्रीम रेयर कंडीशन में देखा कि 0.36 भी था. तो वहां से भी हो सकता है कि 0.5 के नीचे से ही आपको एक रिवर्सल मिल जाए. बट यस, कि आपका सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाता है रिवर्सल का व्हेन योर पीसीआर रेशियो इज बिलो 0.5. where we can get this data. तो डेटा एज अर्लियर यहाँ पे हमने बताया कि आपको निफ्टी के वेबसाइट पे जाना है, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे. वहां से आपको वीकली एक्सपायरी में जाना है, वहां पे आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है और एट द एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा. और एल्स अगर आपको ये नहीं करना तो एक वेबसाइट भी हमने बताया niftytrader.in का, तो वहां से आप देख सकते हो. PCR on shares, F&O shares, someone has asked. So yes, it surely works, but हमने जितना भी working करा है वो ज़्यादा index पे करा है because of its liquidity. So in that case, we have to select the liquid the stocks which are very liquid in case of options.
but that also changes. So reliability is more in case of index, and for stocks we are not very sure. We haven't worked on stocks as such for with PCR. Someone is asking how to map the पीसीआर in trading view. तो सर आप trading view के अंदर पीसीआर रेशियो को मैप नहीं कर सकते. There And was we a are question. not very much aware with other websites. The ones which we are aware, we have already discussed. There's one question by Mr. Mohit Tyagi. He was asking 10,500 Nifty strike price, 16 July expiry. OI is put at 17 lakhs, 40,150 OI. In call is 21 lakhs, 3,075. So does it mean PCR for the strike price is 8.27? So इसके लिए देखो कैसा होगा कि आपका जो ऑड स्ट्राइक प्राइस होगा कि 50 वाला स्ट्राइक प्राइस की फॉर एग्जांपल 10,700 है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आएगा आपका 10,750. तो वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि जो ऑड स्ट्राइक प्राइस होता है उसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम होता है वो वन साइडेड होता है. तो इसके लिए हियर यू ओनली हैव टू कैलकुलेट फाइनल पीसीआर. जो आपका फाइनल जो पुट का ओपन इंटरेस्ट होगा और कॉल का ओपन इंटरेस्ट होगा वही आपको लेना है, नॉट इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस. इंडिविजुअल से भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट हियर जो हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है वो है टोटल पीसीआर, नॉट इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पीसीआर. There's one more question by Mr. Nagesh Gandhi. Nifty's directly depends on CE. It's his question. If Nifty goes high, then call will increase. Right. Currently, it is at 10,768. If Nifty goes to 10,800, then who had buyer like CE will go high? हाँ, मतलब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इफ योर निफ्टी इज इंक्रीजिंग, इफ योर निफ्टी इज राइजिंग, तो आपका कॉल ऑप्शंस भी वहां से ऊपर आएगा और पुट ऑप्शन वहां से नीचे जाएगा. सेम ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन कि इफ योर निफ्टी जो है वो नीचे आ रहा है तो आपका पुट ऑप्शन इंक्रीज होगा, कॉल ऑप्शन नीचे आएगा. सो नागेश जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जो हम लोग ने ऑप्शंस का जो बेसिक्स लिया था उसका वीडियो जो है वो यूट्यूब पर है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो. तो वहां पे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉल और पुट के वो उनका क्लियर हो जाएगा. Thank you. One person is asking, can you make a video on volatility? Kunal Pawar is requesting. Hansraj bhai? Yeah, actually, that concept is very different, and it requires you to have a lot of other things clear first. So that is kind of an advanced topic. We'll see. The demand definitely will take into consideration in our list. If we get proper demand, then definitely we will go for it. Someone is asking, can we calculate PCR in live market? Yes sir, जो अभी हमने वेबसाइट यहाँ पे बताया कि niftytrader.in, वो एवरी 3 मिनट अपडेट होता रहता है. देवराज सर ने ये क्वेश्चन पूछा है. तो वो जो निफ्टी का जो पीसीआर है वो एवरी 3 मिनट यहाँ पे अपडेट होता है, तो वहां पे आपको लाइव मार्केट में ही अपडेट मिल जाएगा. और यू कैन कैलकुलेट मैन्युअली आल्सो. How can we? It's a repeat question actually. What are the other technical indicators that you can deploy along with PCR? It's a question by Chintan Suratia. Sorry, come again. What are the other technical analysis indicators you can deploy along with PCR? It's a question for you, Hansraj. So I've already, I guess this question is asked 2 times. I've already told that, there are a lot of indicators, but the popular ones and which we find working are moving averages, MACD and RSI. These three you can apply. But these are, these should be, we haven't tried such combination of using it with PCR. What we do is that we have our main indicators, like say these three are our main indicators. And with that, if we are getting other confirmation from any other tools, just like PCR, then it helps us in, taking our decisions. If are there any more questions that need to be answered?
Hansraj and Akash. Yeah. Someone is asking. So as we are discussing about the topics which someone has suggested about volatility. So let us know which topics are of your interest. So it will help us in deciding our schedule and deciding the topics on which we are planning to have webinars ahead. So share the ones which you want us to take webinar on which topics. As all the attendees, if you see on your screen, we currently have our WhatsApp and our social channels that are open for everyone to join. So if anyone has any feedback or if anyone has any request, "Okay, I want this topic to be covered in the upcoming webinars," kindly just drop us a WhatsApp and we'll make sure that we accommodate the same. And Hanu sir, and this जो quiz के जो right answer थे वो कहाँ पे upload हो गए? That I will announce to everyone, Baba. Once I guess everyone's questions are more or less getting answered. However, Yes. on an overall level, I would like to thank everyone for joining and sharing the valuable time and taking part in this interesting session and the polls. If anyone has any questions that we are not able to answer at this point, we will make sure that our research team gets them answered to you at the earliest. However, as I mentioned earlier on the discussion also, that you can see our WhatsApp and our social channel details on your screen. You can either connect with us on any of these channels, join our Telegram and other channels too. And regarding the poll, people who have won the poll, as mentioned at the beginning of our webinar, the attendees who answers all the questions in the polls correctly and follows us across the social channels will stand a chance to win a 500 rupees Amazon gift voucher. The winners of the polls will be announced on our Facebook channel on the 15th of July, that is the Wednesday, coming Wednesday at 5 p.m. Apart from that, if we'll announce the winner on Instagram, so be sure to follow us on Instagram and YouTube to subscribe to our channels. That is where we will announce the winners. Cool. I think in that case, thank you everyone again. And yep, we'll connect with you guys soon again. Please stay tuned on our channels again, on our social channels, and we'll inform you about the upcoming webinars. Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone for attending the webinar. Thank you. Bye-bye.